Okay, the last antisocial behavior that we are going to discuss is known as prejudice, जिसको आमतौर पे आम ज़बान में तासुब कहा जाता है. तासुब की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं जो कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. First of all, how do we define prejudice? Prejudice means prejudgment or judgment before time. It is also known as a preconceived opinion bias against or in favor of a person or a thing that's always negative, emotional and violent. यानी कि आप किसी चीज की डिटेल्स किसी इंसान को जानने से पहले ही एक जजमेंट कायम कर लें, एक राय कायम कर लें. इसको एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन बायस भी कहा जाता है. या तो किसी चीज के अच्छा इट कैन आइदर बी अगेंस्ट अ पर्सन और सिचुएशन और थिंग, और इट कैन बी इन फेवर ऑफ सेम साइड एज वेल. ठीक है, यानी कि इट विल ऑलवेज एंड मतलब प्रेजुडिस जो होता है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव इन सेंस के इट माइट बी इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ गुड पर्सन, हु इज अ नेगेटिव पर्सन, या उसकी नेगेटिव एक्ट्स है वो इमोशनल लेवल पे बनता है, एंड इट कैन कॉज एग्रेशन एंड रिजल्ट इन वायलेंट बिहेवियर उसकी वजह से. न्यूकॉम इन सोशल साइकोलॉजी डिफाइंस प्रेजुडिस. A prejudice is an unfavorable attitude, a predisposition to perceive, act, think, and feel in ways that are against another person or group. It refers to an hostile attitude towards some social group. It is preconceived opinion which is established by ignoring facts about any race or religion. Prejudice is a negative attitude towards specific social group, and it means a decision or belief that is generally negative and that predisposes us to think about different people in a specific way. It is learned and acquired during group life. यानी कि these are the different definitions of prejudice. If we conclude, if we try, like make a conclusion out of these definitions, तो simply ये कि prejudice जो है वो एक unresearched opinion है जिसके ऊपर आप ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं. आप प्री जजमेंट कायम करते हैं, प्री कंसीव्ड ओपिनियन होता है आपका, बाइस्ड होता है. इट्स बहुत ज़्यादातर ये कि इट इज़ अ नेगेटिव इमोशनल वायलेंट वन. आप उसकी वजह से आपके एक्शंस, आपकी थिंकिंग और फीलिंग्स जो हैं वो भी अफेक्ट होती हैं. इट इज जनरली हॉस्टाइल एटीट्यूड, किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप की तरफ भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की तरफ भी हो सकता है. सोशल ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, आपके इन ग्रुप, आउट ग्रुप, आपके रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट किस्म के, कोई लैंग्वेज, मतलब इस तरह से आपके डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके अगेंस्ट इसने करना है. इट कैन एक्चुअली लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्रेजुडिस जो होता है, a lot of destructive activities. There are three components of prejudice, ABC model के accordingly. A is the affective component that is related to emotions of aggression, hostility and fear. B is the behavioral content that is related to the practical application of emotions as expression of aggression. यानी कि आप किस तरह translate करते हैं अपने emotional level की affiliation को into behaviors. And third is C, cognitive, according to the ABC model, that is related to the hostile attitude towards some group or individual. यानी कि thinking, behavior and emotion. तीन चीजें, यानी कि your thoughts about something, your understanding about something, your perception about something that fuels your emotions, कि आप emotions अपने किस तरह के उसके related बनाते हैं, aggressive, hostile या फिर fearful, and how do you act in accordance to your understanding and your affective level. How does prejudice develop? According to social psychologists, parents, peer groups, siblings, and relatives play an important role in development of prejudice. So prejudice is not instinctive in nature, but acquired or learned from social environment. हम social learning theory के accordingly देखें तो बच्चा अपने डेवलपमेंटल फेसेस में जो कुछ होता हुआ देख रहा होता है, जो कुछ होता हुआ रीइंफोर्स होता हुआ देख रहा होता है, उस चीज को अडॉप्ट करता जाता है. अगर उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी एक पर्टिकुलर राय है तो वो उस राय को अडॉप्ट करेगा, बिकॉज दे विल बी गिविंग द चाइल्ड इनफ फूड फॉर थॉट कि वो उस चीज को मान जाए. तो जो आपका प्रेजुडिस है, इट जनरली डेवलप्स विद टाइम, और ये अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, along with the development of the child, ये डेवलप होता चला जाता है. नाउ हाउ डू दे लर्न प्रेजुडिस? कि वो अपने एल्डर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं डिफरेंट लोगों की तरफ, जो उनकी राय होती हैं या बातें होती हैं, वो उनको इमिटेट करते हैं. यानी कि अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के बारे में सही अच्छा नहीं समझते, तो हो सकता है कि वो बच्चे जब स्कूल में जाके इंटरैक्ट करेगा किसी एक उस तरह
उस कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो वो उनके साथ उसी तरह से बिहेव करेगा। वाई? बिकॉज उसके पेरेंट्स उनको अच्छा नहीं समझते। इज ऑल्सो लर्न फ्रॉम बायस्ड हिस्ट्री बुक्स एंड मास मीडिया। आपका मीडिया जिस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप को पोर्ट्रे करता है, या आपकी सोसाइटी में किस तरह से उन लोगों के लिए सच सोचा समझा जाता है, या फिर आपकी हिस्ट्री में क्या लिखा जाता है। आपकी हिस्ट्री बाइस अगर बाइस्ड होगी तो आप उनके बारे में बुरा समझेंगे, ठीक है। फॉर वन सिंपल एग्जांपल है, इंडिया की जो बुक्स हैं उनके अंदर मुसलमानों के बारे में बुरा लिखा जाता है। इस तरह मुसलमानों की बुक्स में इंडिया की जो हिंदूज थे और जो सिख्स थे उनके बारे में बुरा लिखा जाता है। तो वी हैव दिस ओपिनियन के बहुत ज्यादा हमें पता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की गई पाकिस्तान बनने में, इसी तरह उनको भी इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है कि एज इफ उनके साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां की गई। सो इट डेवलप्स अ प्रेजुडिस। Now, what are the causes of prejudice? Social categorization. आप जितना ज्यादा लोगों को ग्रुप्स के अंदर बनाएंगे, जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमिक डेप्रिवेशन बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आप सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करेंगे लोगों की कि वो सोसाइटी में किस लेवल पे मौजूद हैं, उनकी जात पात क्या है, उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली आप जितना ज्यादा उनको कैटेगराइज करते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपका क्लास कल्चर इंक्रीज होगा। जब क्लास कल्चर इंक्रीज हो जाता है तो उसके अंदर आपके सोशल बायसेस और ये प्रेजुडिस डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में जनरली हमारे डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं, एलीट ग्रुप्स हैं, मिडिल क्लास है, लोअर इनकम ग्रुप है, और उनके अगेंस्ट लोगों के माइंड में बायसनेस और प्रेजुडिस डेवलप हुआ है अबाउट लॉट ऑफ पीपल। उसके अलावा जो आपके माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, जो आपका एक मेजॉरिटी ग्रुप है, वो प्रेजुडिस रखेगा, वो तासुब रखेगा माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। इस तरह माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप के लिए तासुब रखेगा, क्योंकि उनकी सोशल कैटेगराइजेशन इस तरह से हुई होती है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप उसी क्लास के लोगों के साथ अपनी एक एफिलिएशन रखेंगे, और जो आपके उस क्लास के या उस ग्रुप के बाहर के लोग हैं उनके लिए आपके यू विल बी हैविंग प्रेजुडिस्ड ओपिनियंस अबाउट देम। Now, people have sympathetic attitude towards the in group, यानी कि उनके साथ अच्छा उनके पास होता है, उनकी फीलिंग्स उनको म्यूचुअल होती हैं, और उनका जो आउट ग्रुप होता है, they have hostile attitude towards the out group. Then education, the influence of teachers and educational institutions cannot be ignored। कि बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर्स को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कुछ सिखाया जाता है उनको फॉलो करते हैं, तो वहां पे प्रेजुडिस अगर सही तरीके से उनको इन चीजों के ऊपर एजुकेट नहीं किया जा रहा, तो इट कैन एक्चुअली बिकम अ कॉज ऑफ प्रेजुडिस। देन मास मीडिया, आप जो दिखाएंगे उसकी वजह से प्रेजुडिस बनेगा। रेसिज्म या फॉल्स बिलीफ, जो कास्ट सिस्टम्स के अंदर स्पेसिफिक रेस के बारे में जो लोगों के डिफरेंट किस्म के बिलीफ्स होते हैं, कहते हैं कि अनजस्टिफाइड ओपिनियंस होते हैं, irrational opinions होते हैं, beliefs होते हैं, they also give rise to prejudice. Now, displacement of aggression and scapegoating. Scapegoating of the innocents and weak people provide a base for prejudice. यानी कि आप जितना ज्यादा उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको स्केपगोट बनाते हैं अपने मसले मसाइल के चक्रों में, उतना ज्यादा आप अपने जो आपका पावरलेस इंसान है जिसको आप स्केपगोट बना रहे हैं, वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप करता जाएगा, और फिर वो अपने उन एग्रेसिव बिहेवियर्स को एग्जिबिट करना स्टार्ट कर देगा और प्रेजुडिस ओपिनियन बना लेगा जो डोमिनेंट लोग हैं उनके खिलाफ। देन इग्नोरेंस एंड शैलो नॉलेज इज द मेन कॉज ऑफ प्रेजुडिस, यानी कि जो लोग जो कि इलिटरेट हैं, या जिन लोगों को समझ बूझ नहीं है ज्यादा, व्हाट दे डू इज के वो अपने सुपरस्टिशियस या फिर अनइंफॉर्म्ड ओपिनियंस बना लेते हैं, वो आगे फिर जनरेशन में ट्रेवल करती जाती हैं और प्रेजुडिस को हवा मिलती जाती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा स्टीरियोटाइप्स आपकी सोसाइटी के, आपके आवाम के इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, और जो आपकी डिफरेंट सेक्सुअल डिफरेंसेस या जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं, दे आल्सो लीड टू प्रेजुडिस, यानी कि औरतों के बारे में एक राय डिफरेंट किस्म की कायम हो जाना, या मर्दों के बारे में एक राय कायम हो जाना, they lead to different prejudiced opinions as well. Characteristic of prejudiced personality. The characteristic of a prejudiced personality, for example, बहुत ज़्यादा short term tempered होते हैं, छोटी छोटी बातों पे aggression show करते हैं, they are not cooperative,
इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वेरी मच अपडेटेड, बैकवर्ड माइंडेड होते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, दे आर ओवर पावर्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ सिन, फेयर एंड फोबियाज कि ओ हो ये कर दिया तो ये हो जाएगा, या ये तो अलाउड ही नहीं है, या आपका दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, विदाउट मेकिंग एनी valid researches about it, या उसके बारे में ज्यादा वो नहीं करते, तो they have these kind of things in them, in their personality, and they generally like to bully other people, या वो dominated feel करना चाहते हैं, तो वो लोगों को उस तरह से ट्रीट भी करते हैं। फिर उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड दे जनरली आर अथॉरिटेरियन, यानी कि वो अपनी अथॉरिटी शो करने की उनको बहुत ज्यादा नीड होती है, जिसकी वजह से उनके प्रेजुडिस पर्सनैलिटी लाइक प्रेजुडिस बिहेवियर्स भी फिर वो एग्जिबिट करते हैं। प्रेजुडिस के मेरिट्स भी हैं, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इब्न खिल्दून ने प्रेजेंट किया था इन फॉलोइंग वेज कि इट ब्रिंग्स रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि जो आपके सोशल ग्रुप्स हैं वो एक लिमिट्स के अंदर रहते हैं और वो लोग आपस में जो हैं अच्छे तरीके से रहते हैं, यानी कि आपके डिफरेंट स्ट्राटा जो हैं वो आपकी इकोनॉमी को या आपकी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू स्पीकिंग जो हमारे पास इंडो पाकिस्तान में जो बड़े सगीर में लोग थे, उन्होंने उर्दू की प्रमोशन ही इस वजह से की बिकॉज दे बिल्ट क्लोज रिलेशंस विद दैट, उनकी एक इफेक्टिव कंपोनेंट था वहाँ पे, उन्होंने उसको फिर बहुत ज्यादा बढ़ाया। It inculcates the patriotic feelings. The individual has positive feelings and opinion about his country as compared to other countries. The individual achieves social goals through prejudice. Is also a source of catharsis to give full vent to his pent up feelings as anger, grief and frustration. यानी कि आप prejudice की वजह से जिस तरह से भी अपनी बात को बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं. It helps people maintain their identity and individuality by transferring its values from one generation to another. It leads the countryman to buy his country-made things so that his own country may have the profit, and it makes people strong and brave to fight for their country's freedom and security. डीमेरिट्स जो होते हैं इसके उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं सोसाइटी के अंदर, अब ये तो अगर हम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में देखें तो मेरिट्स हैं, लेकिन अगर हम एक ही सोसाइटी के अंदर प्रेजुडिस की वजह से देखें तो इट जनरेट्स अननेसेसरी एंगर, टेंशन एंड इरिटेबिलिटी अमंग द पीपल. प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्सेज प्रेजुडिस की वजह से जो है वो जाया हो जाती हैं. जो इंसान प्रेजुडिस हो वो खुद तो डिप्रिवेंट होता ही होता है, पर फिर दूसरों को भी डिप्राइव कर रहा होता है. फिर इट डज नॉट, मतलब आप पीसफुल नहीं, you cannot ensure peace in your society. It is a danger for prestige of another person or group, यानी कि आप एक इंसान की जो हुर्मत है या उसकी जो sense of self esteem है उस सबको डैमेज करने का एक खतरा होता है. It causes social disputes and conflicts. Prejudiced person is harmful not only for himself but also for others. And उसके अंदर ये एक आदत होती है कि अगले लोगों को या दूसरे लोगों को इंफीरियर फील करवाता है और उनको अपनी कैपेसिटीज या उनको अपनी स्किल्स और उन सबको अवेल करने की लाइक द पर्सन मेक्स श्योर कि वो डिफरेंट किस्म के हर्डल्स जो है वो क्रिएट करे. किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है प्रेजुडिस को? इट कैन बी थ्रू एजुकेशन कि आप एजुकेट करें लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको बताएं, उनको पता हो कि किस तरह के इश्यूज आते हैं इफ यू आर अ प्रेजुडिस पर्सन एंड हाउ यू शुड बी अवॉइडिंग मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस दैट आर irrational या फिक्स्ड बिलीफ्स हैं, आप उनको रिसर्च के बगैर ना बनाएं. देन पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है कि अपने बच्चों को ऐसी स्टोरीज ना सुनाएं, ऐसी फिल्म्स ना दिखाएं, ऐसी मजाक उनके सामने ना करें जिसकी वजह से उनकी कोई फिक्स्ड ओपिनियंस बन जाए. बच्चे क्योंकि अपने पेरेंट्स को बहुत आइडियलाइज करते हैं तो टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं, तो आपकी बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने बच्चों को प्रेजुडिस ओपिनियंस ना बिल्डअप करने दें. Now, by bringing conflicting groups into equal status relationship, prejudice can be eliminated. दो कंट्रीज के बीच में आपस में कॉर्डियल रिलेशंस जो बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटीज साइन की जाती हैं, वो इसीलिए की जाती है कि इंटरेक्शंस इंक्रीज करें और जो प्रेजुडिस है उसको कम से कम किया जा सके, उनको इकट्ठे काम करने की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके ताकि उनके अंदर जो हॉस्टिलिटी, हेट्रेड या उनके अंदर जो एक दुश्मनी वाला आंसर है वो खत्म हो सके. Then different groups working in the same area should be given equal rights and justice. Equal judicial facilities can be helpful in eliminating prejudice. अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता
जस्ट बिकॉज आप एक गरीब इंसान है और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा पाए ज्यादा, या आप उनमें पैसे नहीं लगा पाए और आपकी हक तलफी हो गई है, तो यू विल बिकम अ प्रेजुडिस्ड पर्सन कि ये जो इंसाफ है या अदालतें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए हैं या उनको इंसाफ देने के लिए हैं। दिस इज वन एग्जांपल कि आप किस तरह से आपका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज या जस्टिस या राइट्स होते हैं उनकी वजह से किस तरह से आप प्रेजुडिस कायम कर लेते हैं। इफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट एनी ग्रुप और रेस थ्रू मास मीडिया इज बैंड एंड वायलेशन इज पनिश्ड, इट विल बी इरेडिकेटेड, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ हेट स्पीच को रोका जाए, उनके बारे में किसी किस्म की गलत बात को एयर ना होने दिया जाए, एंड उसके लिए प्रॉपर आपको पनिशमेंट सेट हो कि अगर इस तरह का कोई कंटेंट एयर किया जाएगा तो उसको उसमें इट विल रिजल्ट इन बैनिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ देयर contracts or certificates and licenses. The maintenance and survival of democracy. So democracy is the kind of government that is for the people, by the people, of the people. So that means कि आपके अगर different various groups like community में एक country में present है, society में present है, तो a democratic government will be representative of each and every one of the people, the kind of people, ठीक है। तो वहां पे आप किसी किस्म की ऐसी पॉलिसी या किसी किस्म का ऐसा चार्टर या कोई भी ऐसी गवर्नेंस का बिहेवियर या पॉलिसी इस तरह की नहीं लेके आ सकते जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ जाए या प्रेजुडिस को मजीद इंक्रीज करे। इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल इन curtailing and maintaining those people. Encourage people to eliminate such issues by acknowledging their efforts and rewarding them, and by acting upon Islamic preaching. Prejudice can be eradicated as an Islamic concept of brotherhood and fraternity does not allow prejudice. यानी कि भाईचारा, मसावत, उन चीज़ों के बारे में जब बात की जाएगी, जब लोगों को एजुकेट किया जाएगा, तो it will be very much helpful in preventing any sort of prejudiced behaviors and acts.